Welcome everyone to the sixth lecture of chapter differentiability. If you want to access all my free classes and PDF notes, everything will be available on the description of this video. You can check. इस वीडियो में भी हम लोग कुछ अलग टाइप्स के क्वेश्चंस मतलब वो देखेंगे. Very first question is this one. Very similar with continuity chapter में भी हम लोग इस तरह का क्वेश्चन देखा था. You have to find the values of A and B. Find the values of A and B if the following function is differentiable. F of x is differentiable. F of x is differentiable at x equals to 1, and the given function is, you have two different definitions, a plus b x square for x is less than 1, and another definition is 3ax minus b, 3ax minus b plus 2. So one is quadratic, another one is linear. Very simple. Okay. So you have to find the values of a and b such that this function is entirely differentiable at a specific point, that is x is equals to 1. Okay. If I ask you, is this function differentiable? This is a quadratic expression. Yes, this is entirely what? Differentiable. This is a linear function. Yes, this is also differentiable. तो अगर x is equals to 1 पे मतलब वो differential हो गया, that means ये पूरा entire function is differentiable, we can say. ठीक है, वो अलग बात हो गया. Now we will try to focus on our question only. How to solve? देखो straightforward question है. In the question itself, it is given that this function is differentiable at x equals to a. That means left hand derivative at x equals to a is equals to the right hand derivative at x at the same point, and both of them has to be finite. ठीक है, तो आपको लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव फाइंड करना है. फाइंड करो. एट x equals to 1, लिमिट h tends to 0, formula says f of 1 minus h minus f of 1 divided by minus h. ठीक है, निकालो. लिमिट h tends to 0, f of 1 minus h. See, the input is slightly less than 1. ठीक है, वो पता है. So this first definition will open. So a plus bx square, a plus b input square, input is 1 minus h whole square. I hope this is clear. Minus f of 1. Now the input is 1, and see this is exactly 1. So second definition में हम x के जगह एक पुट मतलब वो 1 पुट कर देंगे बस. 3a into 1 means 3a minus b plus 2. Very simple. And on the denominator you have minus h. Okay. Now अब क्या करोगे? देखो, if you put h is equals to 0 here, this denominators become 0, but ऊपर आपके पास कुछ एक एक्सप्रेशन रहेगा, है ना, in terms of a and b. ठीक है, but by definition this function has to be what? Differentiable at x equals to a. इसका मतलब क्या हो गया? ये जो होगा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, this left hand derivative has to be equal to right hand derivative, and both of them have to be finite. दोनों finite होना चाहिए. That means इसका जो वैल्यू आएगा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, ये एक फाइनाइट वैल्यू आना चाहिए. समझ में आ रहा है? तो ट्राई टू पुट h is equals to 0 here. अब यहाँ पे h is equals to 0 पुट करके देखो क्या आ रहा है. ठीक है, पुट h is equals to 0, वहाँ पे h is equals to 0 पुट करके देखो क्या आ रहा है. उस लिमिट का जो वैल्यू आ रहा है वो देखो बस. You put h is equals to 0 here, तो नीचे आ रहा है आपके पास -0, and on the top you have
देखो ये पूरा 1 हो जाएगा ना, बी बी इंटू 1 हो जाएगा, तो ए प्लस बी -3a plus b -2. Now if I do some simplification, I will get 2b minus 2a minus 2. Clear? 2b minus 2a minus 2 आ जाएगा, ठीक है। देखो, if this numerator becomes a non-zero, see, so this is a possible scenario I am taking. If this numerator is a non-zero, so a non-zero divided by 0 becomes what? Infinity, प्लस माइनस जो भी आएगा, ठीक है, ठीक है। सो लेकिन आपको ये चाहिए फाइनाइट होना चाहिए, ये लेफ्ट हैंड मतलब वो डेरिवेटिव का वैल्यू आपको चाहिए फाइनाइट। तो द ओनली ऑप्शन लेफ्ट इज दिस हैज टू बी जीरो, ठीक है, 0/0 वाला केस आ जाएगा तब। होप यू आर गेटिंग नाउ, ठीक है। सो फ्रॉम हियर आई एम गेटिंग ए कंडीशन, द कंडीशन इज 2b minus 2a minus 2 has to be equals to 0. So this is one condition, कोई कंडीशन मिलेगा, ठीक है। दैट मीन्स अब देखो 2b minus 2a minus 2 becomes 0 होना चाहिए, ठीक है, वो हमने हाथ में मतलब वो लिख लिया कि ये होगा, ओके। नाउ तो अब देखो अगर ये हो रहा है, if you put h is equals to 0 here, now it becomes 0/0 form, kind of we can say, right? अब ये मतलब वो 0/0 फॉर्म जैसा बन रहा है, ठीक है। तो यू हैव टू अप्लाई सम फॉर्मूला टू सॉल्व दिस पर्टिकुलर लिमिट। अब कैसे करोगे? 0/0 फॉर्म बन रहा है ना, तो कैसे करोगे? ठीक है, आप लिख लो लिमिट h टेंड्स टू 0, आपको इस h को कैंसिल आउट करना है बस इस तरह से, -h, this becomes a plus I am trying to open this thing, b minus 2hb हो जाएगा plus bh square हो जाएगा, and this becomes -3a plus b minus 2. तो a और -3 becomes -2a and b ये 2b हो जाएगा ना, ये 2b हो जाएगा। तो यहाँ से क्या दिख रहा है? 2b minus 2a minus 2 becomes 0, ये इसको हमने मतलब वो 0 एज्यूम कर लिया है, सो ये एंटायर थिंग बिकम्स 0, ये पूरा 0 आ गया, ठीक है, वो कैंसिल आउट हो गया। नाउ यू कैन इजीली कैंसिल आउट दिस h, ठीक है। अब h को कैंसिल आउट कर दो, क्या बचेगा? नाउ दिस लिमिट बिकम्स लिमिट h टेंड्स टू 0, तो 2b माइनस h से मतलब वो डिवाइड कर दिया, माइनस b हो जाएगा, माइनस b हो जाएगा ph. Now you can easily put h is equals to 0 here because there is no indeterminacy. You will get the value as 2b. 2b minus 0 is 2b. ठीक है, so this is finite. ठीक है, ये आपके पास एक finite value आ गया कब? When this condition is hold. ठीक है, तो this is one condition we have to remember. ठीक है, तो ये आपके पास हो गया लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का एनालिसिस। नाउ वी विल सी राइट हैंड डेरिवेटिव, उसमें क्या हो रहा है वो आप देखते हैं। राइट हैंड डेरिवेटिव limit h tends to 0, on the top you have 1 plus f of 1 plus h minus f of 1 divided by plus h. इसमें भी देखो which definition will open? The input for the given function is slightly more than 1. more than 1 होगा तो ये सेकेंड वाला डेफिनेशन खुलेगा, जहाँ पे x है वहाँ पे 1 plus h लिखना हो, 3a 1 plus h minus b plus 2. So this is the function value at 1 plus h minus f of 1. f of 1 अभी जैसे हमने देखा था 3a minus b plus 2. 3a minus b, this is the function value. ठीक है, यहाँ से भी देखो क्या आ रहा है, लिमिट h टेंड्स टू 0, ऊपर देखो क्या आ रहा है, 3a कैंसिल हो जाएगा तो 3ah बचेगा, 3ah, और माइनस b ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, और 2 कैंसिल हो जाएगा, तो अल्टीमेटली आपके पास रहेगा 3ah डिवाइडेड बाई h कैंसिल हो गया, नाउ यू आर जस्ट लेफ्ट विथ 3a, ठीक है। देन यू पुट लिमिट h इज
ठीक है, मैं दिखा देता हूँ. लिमिट h टेंस टू 0, h कैंसिल हो गया, 3a बचा. नाउ यू पुट h इज इक्वल्स टू 0 हियर बट देयर इज नो h, सो 3a आएगा आंसर. ठीक है, सो दिस इज ऑल्सो ए फाइनाइट वैल्यू. ठीक है, तो ये आपके पास एक कंडीशन था, दिस पिंक कलर लाइन, वन कंडीशन. देखो, another condition you will get from here, left hand derivative and right hand derivative both, मतलब वो दोनों सेम होना चाहिए. 2b becomes 3a is another condition. उस कंडीशन को मैं लिख रहा हूँ इसमें, you know, because this is differentiable, since it is differentiable, it is differentiable at x equals to 1, that means another condition, left hand derivative is equals to right hand derivative. So this is another condition. ये दो कंडीशन आपके पास आ गए. Now you have two variable and two different equation. You can easily solve from 1 and 2. From 1 and 2. तो 2b के जगह मैं 3a लिख रहा हूँ. ठीक है, वन इक्वेशन में 2b के जगह 3a लिख रहा हूँ. 3a minus 2a, 3a minus 2a minus 2 is equals to 0 आ रहा है. So from here you can write a equals to 2. I hope this is clear. A equals to 2 आ रहा है. Yes. And similarly from equation number 2 you can get the value of b as 3. Hope this is clear. A equals to 2, b equals to 3. ठीक है. So this is how you can find the value of a and b. You have another way, and that is basically a shortcut. ठीक है, आई होप दिस एंटर थिंग इज क्लियर. देखो हमने क्या किया, हमने इस लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का फर्स्ट ऑफ ऑल मतलब वो वैल्यू निकाला. कैसे? विद द हेल्प ऑफ सम सर्टेन कंडीशन. वो कंडीशन आपको यहाँ से मिल जाएगा. ठीक है, बिकॉज दिस लिमिट का वैल्यू हैज टू बी ए फाइनाइट वैल्यू, तो ये कंडीशन होना चाहिए. ठीक है, अदरवाइज इट विल बी एन इन्फिनिटी वैल्यू. तो कंडीशन भी आपको मिल जाएगा अकॉर्डिंगली, और साथ में उसका वैल्यू भी मिल जाएगा. दिस इज टू बी लाइक दैट. ठीक है, आपको समझ में आ गया? प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. And we will see another shortcut, another method we will see. Or see, because you know these two definitions are individually what differentiable, because this is a quadratic expression and this is a smooth curve. आपको पता है, this is a parabola and those are smooth lines, and this is a linear expression, you know. तो ये दोनों ग्राफ इंडिपेंडेंटली what डिफरेंशिएबल है. सो यू कैन फाइंड द एफ डैश वैल्यू. ठीक है, इस तरह का भी क्वेश्चन हम लोग देखा है. एफ डैश ऑफ एक्स क्या आएगा, देखो. तो फर्स्ट है आपके पास a प्लस बी एक्स स्क्वायर, तो उसको डेरिवेटिव लो, क्या आएगा? a प्लस बी एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आएगा? 2bx आएगा. कब? व्हेन x इज लेस देन 1. अनदर देखो मतलब वो इसका मतलब वो डेरिवेटिव लोगे तो 3a आएगा, बिकॉज x इज द वेरिएबल ओनली. 3a विल बी द, यहां से आ गया x इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 1. फ्रॉम हियर यू कैन राइट कंडीशन. कंडीशन क्या है? देखो, दिस इज द फंक्शन ऑफ, किसका फंक्शन है? ये डेरिवेटिव का फंक्शन है. तो फ्रॉम हियर यू कैन इजिली राइट व्हाट. देखो यहाँ से आपको डायरेक्टली पता चल जाएगा व्हाट इज द लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव. फ्रॉम हियर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज, यू जस्ट हैव टू पुट x इज इक्वल्स टू 1 हियर. ठीक है, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का मतलब क्या होता है? बेसिकली x इज अप्रोचिंग टू 1 फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगा तब. ठीक है, दिस इज द लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव पोर्शन. तो यहाँ से आपको 2b इंटू 1 एंड 2b आ जाएगा. ठीक है, सो दिस इज लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव. एंड राइट हैंड डेरिवेटिव क्या आएगा? 3a. देखो यहाँ पे भी x का वैल्यू 1 पुट कर दो, बट x है ही नहीं, तो सिंपली ये 3a आ जाएगा. दिस इज क्लियर. ठीक, तो हमने बस स्लोप देखा एट पॉइंट x इक्वल्स टू 1, एंड बिकॉज दिस फंक्शन इज व्हाट डिफरेंशिएबल, दिस फंक्शन इज डिफरेंशिएबल, दैट मीन्स लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव हैज टू बी इक्वल विथ राइट हैंड डेरिवेटिव. ठीक है, एंड बोथ हैव टू बी फाइनाइट.
तो यहाँ से क्या आएगा 2b इक्वल्स टू 3a आएगा, ठीक है। सो दिस इज वन कंडीशन, बट एक और कंडीशन कहाँ से लाओगे, बिकॉज वी हैव टू अननोन a एंड b, यू हैव टू सॉल्व a एंड b। सो एक और मतलब वो कंडीशन चाहिए, वो कहाँ से आएगा, थोड़ा सा सोचो कहाँ से आएगा वो कंडीशन। वो कंडीशन आएगा, देखो, बिकॉज वी नो कि दिस फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट x इक्वल्स टू 1। So if a function is differentiable at a certain point, that means that function is automatically continuous. Continuous also है ना, that function is continuous also. So इसमें हम लिखेंगे because we know function is differentiable. Function is differentiable at x equals to 1. So it is obvious thing कि function is continuous also. It is continuous also at same point x equals to 1, ठीक है। इफ द फंक्शन इज कंटिन्यूअस तो वहां से आपको एक और कंडीशन मिल जाएगा। तो फंक्शन इज कंटिन्यूअस, तो वो हम कैसे लिख देते हैं, बिकॉज वी नो दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस, दैट मीन्स यहाँ पे 1 पुट करो तो जो रिजल्ट आएगा दैट विल बी व्हाट, योर लेफ्ट हैंड लिमिट। यहाँ पे डायरेक्टली 1 पुट कर दो, ठीक है। सो दिस इज द फंक्शन एक्सप्रेशन, फंक्शन वाला एक्सप्रेशन है ये। तो दिस लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आएगा, लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आएगा, वही लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ 1 माइनस h आपको फाइंड करना है। एंड यू नो बिकॉज दिस इज ए पॉलिनोमियल, तो पॉलिनोमियल में आप डायरेक्टली 1 पुट कर सकते हो। 1 पुट कर दो तो क्या आएगा, a प्लस बी आएगा, लेफ्ट हैंड लिमिट a प्लस बी। एंड राइट हैंड लिमिट क्या आएगा, इसमें भी आप पुट करो वही लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ 1 प्लस h होगा, तो ये वाला फंक्शन डेफिनेशन खुलेगा। और इसमें भी कोई भी इंडिटर्मिनेंसी तो है नहीं, सो यू कैन इजिली पुट x इज इक्वल्स टू 1 हियर। तो 3a माइनस b प्लस 2 आएगा, 3a माइनस बी प्लस 2 आएगा। एंड फंक्शन वैल्यू इटसेल्फ वो भी निकालना है, फंक्शन वैल्यू सेम होगा, क्योंकि तीनों चीज़ आपको मतलब वो फाइंड आउट करना होता है इन केस ऑफ कंटिन्यूटी, लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट एंड फंक्शन वैल्यू। और ये तीनों इक्वल होना चाहिए। तो ये फंक्शन वैल्यू के साथ इक्वल होगा बिकॉज x इज इक्वल्स टू 1, वही सेकंड डेफिनेशन को मतलब वो डिनोट कर रहा है। So from here also you can write, because this function is continuous also at x equals to 1, so left hand limit becomes right hand limit, same, दोनों सेम आएगा। तो यहाँ से आपको एक और इक्वेशन मिल जाएगा, एंड दैट इक्वेशन विल बी 2b, b को इस साइड लेके आया, a को इस साइड लेके गया, तो 2a प्लस 2r। तो दिस इज इक्वेशन नंबर 2। नाउ थिंग्स बिकम्स वेरी इजी। आपके पास दो इक्वेशन आ गया, इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। देखो ये देखो, ये दोनों इक्वेशन वही आ रहा है, सेम इक्वेशन आपके पास आ रहा है, ठीक है। सो आई वुड से कि ये आपका सेकंड वाला वो मेथड आप मतलब वो ट्राई करो एग्जाम में, ठीक है। इससे आपका थोड़ा फास्ट हो जाएगा। बस इसमें एक चीज़ मतलब वो याद रखने वाली बात है कि जो मतलब वो सेकंड कंडीशन आएगा वो आपका कंटिन्यूटी मतलब वो चेक करना होगा उसमें। As in the question, it is already given that this function is what, differentiable. That means it is obviously continuous at the same point. बस आपको वो knowledge रहना चाहिए, then you can easily tackle this type of questions. Very simple. Okay, now you can solve with question number 1 and 2, and you will get the values of a and b. Please let me know in the comment section. ठीक है, आपको समझ में आया कि नहीं बता दें। Now we will see another question. इसमें आपको फाइंड करना है, फाइंड द पॉइंट्स ऑफ नॉन डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ फंक्शन। सम फंक्शंस आर गिवन एंड फर्स्ट पार्ट इज योर y इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ 2x प्लस 1 प्लस मॉडुलस ऑफ x माइनस 1। So you have to tell me the points of non-differentiability for this given function. बोलो, आपको कुछ वो नोट्स लिखा था हमने, वो याद है? If you are given two different function, one is f, one is z. If both are differentiable, that means दोनों का सम, दोनों का मतलब वो सब्सट्रैक्शन ले लो, या फिर दोनों का प्रोडक्ट ले लो, या फिर डिवीजन ले लो। So all the 4 cases are
मतलब वो all the 4 cases में क्या होगा, that function will be differentiable. But suppose one function is differentiable but another function is not differentiable, that means इसका sum या subtraction क्या आएगा, non differentiable आएगा. ठीक है. So in all other possible cases you have to check, you cannot comment on this differentiability. But here as you can see, this is a modulus function and this modulus function is what, not differentiable at its critical point, not differentiable at x is equals to minus half. This minus half is the critical point, पता है आपको. And this is also modulus function, as you know. This modulus function is also not differentiable at x equals to 1. ठीक है. देखो, just check. ऑलरेडी आप इसको मतलब वो चेक करो at point x equals to minus half पे देखो, because these are two doubt points. तो minus half पे this first function is what, not differentiable, but this second function is differentiable at x equals to minus half, है ना. Because देखो, this modulus function is not differentiable at x equals to 1 only, और ये बाकी केसेस में तो क्या है, ये बेसिकली मतलब वो डिफरेंशिएबल है. तो इफ आई कंसिडर दिस पॉइंट x is equals to minus half, इसमें सिर्फ फर्स्ट फंक्शन जो है दिस इज नॉट डिफरेंशिएबल बट दिस इज डिफरेंशिएबल, तो इन दोनों का सम क्या आएगा, नॉन डिफरेंशिएबल आएगा. ठीक है. दिस इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x equals to minus half, मतलब हम ऐसे लिखेंगे एट x equals to minus half, दिस इज नॉट डिफरेंशिएबल, दिस इज डिफरेंशिएबल, दोनों का सम क्या आएगा, नॉट डिफरेंशिएबल है. ठीक है, नॉट डिफरेंशिएबल है. नाउ अनदर डाउट पॉइंट वी हैव x equals to 1. तो इसमें भी देखो x equals to 1 पे क्या आ रहा है, दिस फर्स्ट फंक्शन इज डिफरेंशिएबल बट दिस इज नॉट डिफरेंशिएबल, बट दोनों का सम क्या आएगा, नॉट डिफरेंशिएबल आएगा. दिस इज डिफरेंशिएबल, दिस इज नॉट डिफरेंशिएबल, दैट मीन्स नॉट डिफरेंशिएबल. दैट मीन्स हाउ मेनी पॉइंट्स ऑफ नॉन डिफरेंशिएबिलिटी इज देयर, 2 points of non-differentiability, and what are those? One is x equals to minus half, one is x equals to. So these are the points, मतलब ऐसे लिखोगे, points of not differentiability are, so we are trying to write the abscissa. Abscissa मतलब x coordinate minus half and 1. Okay, so these are the points of non-differentiability for the center function. Hope this is clear. Now we will see the second part. Same question, you have to find the points of non-differentiability. Y equals to modulus, not this modulus, this is box of x. Box of x plus tan inverse of x plus a line, basically 3x minus 1. You have to tell me the points of non-differentiability. Follow. This is box function. As you know, this box function is discontinuous at integers. तो जहाँ पे ये discontinuous होगा वहाँ पे not differentiable होगा. Not differentiable at integers. Can you imagine the graph of tan inverse of x? Yes, आपको याद होगा तो, अगर आप लोग अच्छे से पढ़े हो तो tan inverse of x का ग्राफ स्मूथ ग्राफ है. ठीक है. So this is differentiable everywhere and this is just a line. ये आपका एक लाइन है बेसिकली, and this line is always differentiable. ठीक है. So one is not differentiable, this is differentiable, this is differentiable. That means the resultant function, दोनों का sum, मतलब ये तीनों का sum basically क्या आएगा, not differentiable आएगा, not differentiable आएगा. And can you tell me what are the points at which this entire function is not differentiable? Yes, at integers. That means आप क्या कैसे लिखोगे, this function is not differentiable at integers. We'll move to the third part. Y equals to x square into sin inverse of x divided by 3x plus 1. बोलो क्या ये डिफरेंशिएबल है, विद इन इट्स डोमेन, ऑफ कोर्स डोमेन में बात होगा. एक्स स्क्वायर इज व्हाट, स्मूथ ग्राफ, पैराबोला, quadratic polynomial. Yes, this is differentiable. This is sin inverse of x का ग्राफ पता है आपको, this is also differentiable, स्मूथ ग्राफ है ना. So दोनों का प्रोडक्ट आ गया differentiable, and again this is just a line and this line is also differentiable function. So that means product and साथ में क्या हमने किया इसमें division, all those things are differentiable. That means this resultant function is differentiable. So differentiable everywhere. Yes, of course it is within its domain.
ठीक है, विद इन डिफरेंशिएबल विद इन इट्स डोमेन। इसके डोमेन के अंदर ये पूरा फंक्शन डिफरेंशिएबल हो। होप दिस इज क्लियर। नाउ वी विल सी सम very important questions probably you can expect in your exams। थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन भी बन जाता है। एंड यस, फंक्शनल रिलेशन। इफ f of x plus y is given as f of x plus f of y, so these are some questions which makes you think, basically आपको सोचने के लिए मजबूर करेगा। and f of x is differentiable, of x is differentiable, and f dash of 3 is equals to 2, so this is a condition given basically, and you have to find the function का जो एक्सप्रेशन है वो आपको निकाल, what is the function। okay, so can anyone can guess what is happening। देखो ये यहाँ से आपको एक चीज वो पता चल जाएगा कि फंक्शन चैप्टर में मैंने सिखाया था कि इफ दिस हैपेंस, अगर देखो अभी मैं फिर से नहीं बता रहा हूँ, फंक्शन चैप्टर में मैंने आपको बताया था कि ऐसा जब कंडीशन रहता है, जब प्लस में रहेगा तो फिर से ये प्लस में ऐसे ओपन होगा, सो दैट मीन्स दिस इज काइंड ऑफ व्हाट, लीनियर रिलेशन वी कैन से। ये प्लस में है, इसमें भी प्लस में खुल रहा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, लिनियरिटी ऑफ दिस फंक्शन। यू विल गेट टू नो अपकमिंग क्लासेस लिनियरिटी के बारे में। तो बेसिकली ये जो फंक्शन होता है ये एक लीनियर टाइप फंक्शन होता है। तो यहाँ से आपको वो पता होना चाहिए, यू हैव टू एज्यूम, ठीक है, मैं उसमें बताया था आपको एज्यूम करना होता है दिस फंक्शन इज ए एक्स। ठीक है, एक फंक्शन लेक्चर में मैंने आपको वो सिखाया था ये। ठीक है, तो जब भी ऐसा रिलेशन रहेगा तो आपको एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू के एक्स एज्यूम करना होता है बस। एंड बस हो गया। बस आपको यहाँ से के का वैल्यू निकालना है, सिंपल, देन आपको फंक्शन का वैल्यू पता चल जाएगा। और के का वैल्यू बस निकालने के लिए आपके पास दिस कंडीशन इज गिवन। ठीक है, सो एज यू कैन सी दिस फंक्शन इज व्हाट, डिफरेंशिएबल, बिकॉज दिस इज जस्ट अ लाइन, दिस फंक्शन इज डिफरेंशिएबल, दिस इज जस्ट अ लाइन हो गया। एंड यहाँ से आपको एफ डैश ऑफ एक्स निकाल जाएगा, क्या आएगा, के आ जाएगा। एंड यू आर गिवन दैट एफ डैश ऑफ 3 इज इक्वल्स टू 2, दैट मीन्स यहाँ पे x का वैल्यू है नहीं तो सिंपली k ही होगा, k इक्वल्स टू 2 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे x होता तो x में 3 पुट कर देते तो एफ डैश ऑफ 3 का वैल्यू यहाँ पे भी k ही आएगा, तो k का वैल्यू 2 आ गया, दैट मीन्स द फंक्शन इज सिंपल, वेरी सिंपल क्वेश्चन, 2x। सो दिस इज द, वी विल सी another interesting question। same type, f of x plus y divided by 2, and this is given as f of x plus f of y divided by 2 for all x and y belongs to real number। But this is a functional relation given, and some conditions are also given, f of 0 equals to 1, f dash of 0 equals to minus of 1, and this function is differentiable everywhere, differentiable, and you have to find the function expression, function निकालना है आपको। सो अगर आपको याद हो तो इस तरह का कोई भी मैंने इक्वेशन नहीं दिया था आपको, ठीक है, तो ना डायरेक्टली राइट इट कि एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू के एक्स अपने लिख लिया, ठीक है, वैसे आपका नहीं होगा। इफ़ यू एज्यूम, अगर आप एज्यूम करोगे एफ ऑफ के एक्स, मतलब एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू के एक्स, कहीं सेटिस्फाई कर रहा है, ऑफ एक्स इक्वल्स टू के एक्स, इफ़ यू एज्यूम ऑफ एक्स इक्वल्स टू के एक्स, कहीं सेटिस्फाई हो रहा है, देखो देख लेते हैं, हो भी सकता है। एफ ऑफ एक्स प्लस वाई क्या आएगा, एफ ऑफ एक्स प्लस वाई बाई 2 क्या आएगा, इनपुट में एफ ऑफ एक्स प्लस वाई बाई 2 है, दैट मीन्स के एक्स प्लस वाई बाई 2 आपके पास है।
यहाँ से आ रहा है के एक्स प्लस के वाई, ऐसा आपके पास एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ वाई डिवाइडेड बाई 2 आर। That means yes, this function that we have assumed is satisfying the given relation. Okay, इसको ट्राई करते हैं जनरलाइज करने की। और देखो वंस अगेन दिस इज ए लिनियर रिलेशन है, यहाँ पे भी प्लस है, यहाँ पे भी प्लस है बेसिकली, ठीक है, डिग्री हैव टू बी सेम। ओके, वी विल स्टार्ट। देखो कोई वैसा रूल नहीं है, एग्जैक्ट रूल की इसको ऐसे ही करना है। ओके, तो वेन एवर यू गॉट कि दिस फंक्शन इज डिफरेंशिएबल, आपको बस वो बेसिक वाला रूल आपको याद रखना है। बेसिक रूल क्या कहता है, देखो एक फंक्शन इज डिफरेंशिएबल सपोज एवरीवेयर, सो आई एम टेकिंग ए जनरल पॉइंट एक्स इज इक्वल्स टू, सपोज एक्स ले लिया, तो डेरिवेटिव का जो वैल्यू होगा, मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि सपोज ए फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल्स टू ए, दैट मीन्स इसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल्स टू राइट हैंड डेरिवेटिव होगा, एंड ठीक है, तो ये दोनों सेम हो जाएगा। और इसी का मतलब ये होता है आपका डी, वो डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है, ये वाला बात हम आगे मतलब वो डिस्कस करेंगे। और इसका मतलब क्या होता है, एफ डैश ऑफ एक्स एट एक्स इक्वल्स टू ए, ठीक है। ओके, तो यहाँ से आपको ये पता चल जाएगा कि दिस एफ डैश ऑफ जीरो अगर आपको निकालना है, देखो दिस कंडीशन इज गिवन, एफ डैश ऑफ जीरो इक्वल्स टू माइनस वन इज गिवन। यहाँ से आप क्या बोल सकते हो, एफ डैश ऑफ जीरो का मतलब होता है, या फिर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव ले लो या फिर राइट हैंड डेरिवेटिव ले लो, क्योंकि वो दोनों तो मतलब वो सेम ही आएगा। सपोज आई एम कंसिडरिंग द राइट हैंड डेरिवेटिव पोर्शन, लिमिट एच टेंस टू जीरो, इसका मतलब एफ ऑफ जीरो प्लस एच, सपोज आई एम कंसिडरिंग दिस राइट हैंड डेरिवेटिव, एंड एफ ऑफ जीरो डिवाइडेड बाई प्लस एच आएगा, ठीक है, और इसका वैल्यू गिवन है माइनस वन। बस इसी को ही हमने फर्स्ट प्रिंसिपल कहते हैं, इसको फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव, ऐसे हमने ओपन कर लिया, एंड वी हैव कंसिडर ओनली द राइट हैंड डेरिवेटिव पोर्शन। कोई बात नहीं, अब इसमें मतलब वो भी ले सकते हो, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव भी ले सकते हो, सेम आएगा ना, बिकॉज दिस फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल्स टू जीरो, इसलिए लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव लो या राइट हैंड डेरिवेटिव लो, दोनों बात एक ही है। नाउ लिमिट एच टेंस टू जीरो, एच एफ ऑफ जीरो का वैल्यू आपको गिवन है, एफ ऑफ जीरो का वैल्यू गिवन है वन, ऑफ जीरो का वैल्यू मैंने रख दिया वन, दिस इज जीरो प्लस एच माइनस वन, एंड दिस वैल्यू इज कमिंग आउट टू माइनस वन। अब एफ ऑफ जीरो प्लस एच को क्या करोगे, यस यू हैव गिवन, यू आर गिवन अनदर कंडीशन, इस कंडीशन को भी आपको अप्लाई करना होगा, ठीक है, हम अप्लाई करके देखते हैं। एक्स प्लस वाई डिवाइडेड बाई टू होना चाहिए, तो इसमें भी हम वैसे बना लेते हैं, इसको अंदर का जो पोर्शन है एक्स प्लस वाई डिवाइडेड बाई टू कर लेते हैं, तो जीरो प्लस टू एच डिवाइडेड बाई टू करना पड़ेगा तब, ठीक है, समझ में आया, क्योंकि इसको सेम रखना है ना, जीरो प्लस एच रखना है, तो जीरो प्लस टू एच डिवाइडेड बाई टू हमने कर लिया, सो दिस जीरो इज ट्रीटेड एज एक्स एंड दिस टू एच इज ट्रीटेड एज वाई, सेम। तो ये कैसे ओपन हो रहा है, देखो होल डिवाइडेड बाई टू करना है और ऊपर लिखना है एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ वाई, समझ में आ रहा है क्या लिखना चाहता हूँ, लिमिट एच टेंस टू जीरो, डिनोमिनेटर में आपके पास प्लस एच, इसको कैसे खोलना है, डिवाइडेड बाई टू करना है और ऊपर लिखना है एफ ऑफ एक्स मीन्स एफ ऑफ जीरो हो जाएगा, प्लस एफ ऑफ वाई मीन्स एफ ऑफ टू एच हो जाएगा, दिस इज माइनस वन बिकम्स माइनस, ठीक है, इसको ओपन कर, एंड अगेन एफ ऑफ जीरो मीन्स वन इज गिवन इन द क्वेश्चन, एफ ऑफ जीरो मीन्स वन। तो यहाँ से आपको कुछ चीज़ें मिलना शुरू, लिमिट एच टेंस टू जीरो, तो इसको थोड़ा एलसीएम लेके नीचे लेके आओ, तो नीचे आएगा टू एच, ऑन द टॉप यू हैव वन माइनस टू, माइनस वन हो जाएगा, तो एफ ऑफ टू एच माइनस वन आ जाएगा, दिस वैल्यू इज कमिंग आउट टू बी माइनस वन, ठीक है।
इस माइनस को मैं जस्ट मल्टीप्लाई कर रहा हूँ क्योंकि आपको कुछ दिखेगा अभी। लिमिट h टेंड्स टू 0, 1 माइनस एफ ऑफ 2h डिवाइडेड बाई 2h इज इक्वल्स टू -1। देखो इस मल्टीप्लाई कर दिया बस इससे, जब इस माइनस को इस साइड लेके आया तो ये 1 माइनस 2f ऑफ h, f ऑफ 2h हो गया, ठीक है। नाउ इफ h इज अप्रोचिंग टू 0 दैट मीन्स 2h इज ऑल्सो अप्रोचिंग टू, मतलब वो 0 आ गया। तो इस 2h को मैं आई एम एज्यूमिंग दिस 2h, मतलब आपको कुछ वो दिखेगा, फॉर्मूला जैसा कुछ दिखेगा। सपोज आई एम एज्यूमिंग दिस एज x, दिस इज नॉट द सेम x, सपोज इसको मैं p बोल दिया, आई एम एज्यूमिंग 2h इज x, क्या आएगा? लिमिट p टेंड्स टू 0, 1 माइनस एफ ऑफ p इज इक्वल्स टू 1। तो ऐसा तो हमने बहुत सारा फॉर्मूला देखा है जहाँ पे नीचे p रहता है, जैसे सपोज लिमिट p टेंड्स टू 0 साइन p बाई p, वो भी 1 होता है। दैट मीन्स 1 माइनस एफ ऑफ p का वैल्यू साइन p हो सकता है। लिमिट p टेंड्स टू 0 e टू द पावर p माइनस 1 डिवाइडेड बाई p, इसका भी वैल्यू 1 होता है। दैट मीन्स 1 माइनस एफ ऑफ p का वैल्यू e टू द पावर p माइनस 1 भी हो सकता है। समझ में आ रहा है? इफ आई कंसिडर p टेंड्स टू 0 दिस फॉर्मूला 10p बाई p, इसका भी रिजल्ट 1 होता है। दैट मीन्स 1 माइनस एफ ऑफ p का वैल्यू भी 10p हो सकता है। एंड दिस इज हाउ वी मे हैव टू मेनी फंक्शंस, मतलब जिसमें एफ ऑफ पी का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, मतलब वो तो बेसिकली यहाँ से एफ ऑफ पी फंक्शन का रिजल्ट क्या आएगा? एफ ऑफ पी इक्वल्स टू 1, क्या आएगा? 1 माइनस साइन पी आएगा। और एक क्या आएगा, यहाँ से कैलकुलेट करोगे तो क्या आएगा? 2 माइनस ई टू दी पावर पी आएगा, और यहाँ से 1 माइनस 10p आएगा, ठीक है। तो यहाँ से अगर आप देखोगे इसको, तो दीज आर द पॉसिबल केसेस, नॉट ओनली दीज 3, इससे भी ज़्यादा आएगा कुछ, ठीक है। ये एक हो सकता है, एफ ऑफ पी इक्वल्स टू 2 ई टू दी पावर पी आ सकता है, एफ ऑफ पी इक्वल्स टू 1 माइनस 10p आ सकता है। तो देखो एफ ऑफ पी का वैल्यू आ गया, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, बट जस्ट वेरीफाई। सपोज एफ ऑफ पी का वैल्यू 1 माइनस साइन पी आ गया, क्या वो इस इक्वेशन को होल्ड कर रहा है? देखो इसको होल्ड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। इफ यू पुट एफ ऑफ, सपोज इफ यू कंसिडर एफ ऑफ एक्स टू बी, क्या था? एफ ऑफ पी का वैल्यू 1 माइनस साइन पी, मतलब 1 माइनस साइन एक्स। सपोज एफ ऑफ एक्स का वैल्यू मैंने ले लिया 1 माइनस साइन एक्स, सो दिस इज अ पॉसिबल केस। अगर एफ ऑफ एक्स का वैल्यू 1 माइनस साइन एक्स हो गया, देखो आप खुद से वो मतलब वो वेरीफाई करोगे तो आपको दिखेगा कि दिस फंक्शन इज नॉट सेटिस्फाइंग दिस गिवन रिलेशन। अब निकाल के देख सकते हो, एफ ऑफ एक्स प्लस वाई डिवाइडेड बाई 2 निकालोगे तो क्या आएगा? 1 माइनस साइन एक्स प्लस वाई डिवाइडेड बाई 2 लिखोगे, एंड दिस इज नॉट सेम एज 2 इंटू एफ ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स का मतलब एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ वाई क्या आएगा? 2 माइनस साइन एक्स साइन वाई, 2 माइनस साइन एक्स प्लस साइन वाई आएगा। सो दीज टू फंक्शंस आर नॉट सेम, राइट? ये दोनों सेम तो नहीं है। तो सिमिलरली इफ यू कंसिडर द एक्सपोनेंट वाला, मतलब वो रिलेशन क्या था? एक्सपोनेंट वाला रिलेशन 2 माइनस ई टू दी पावर पी था ना, मतलब यहाँ पे ई टू दी पावर एक्स हो जाएगा। आई कंसिडर द इनपुट एज एक्स, यहाँ पे 2, देखो दीज आर द पॉसिबिलिटीज, ये हो सकता है, लेकिन हमने मतलब वो वेरीफाई किया तो ये तो नहीं होगा। देखो दिस इज एक्सपोनेंशियल रिलेशन, अब इसको भी आप मतलब वो वेरीफाई करना चाहोगे, इसमें दिस फंक्शन इज ऑल्सो नॉट सेटिस्फाइंग दिस गिवन रिलेशन, कैन चेक, ठीक है। तो सिमिलरली जो लास्ट में एक और था 1 माइनस 10x, वो भी इस गिवन रिलेशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा। क्यों सेटिस्फाई नहीं करेगा? बिकॉज वन इज साइनोसॉइडल, अनदर इज एक्सपोनेंशियल, तो वो सब चीज़ें इसमें सेटिस्फाई नहीं करेगा। बिकॉज यू नो दिस इज ए लिनियर, मतलब वो रिलेशनशिप, यहाँ पे भी प्लस है, यहाँ पे भी प्लस है, तो जो भी कुछ आएगा वो एक बेसिकली लाइन का इक्वेशन होना चाहिए, तो इट शुड बी ए पॉलिनोमियल ओनली। तो यहाँ से एक और पॉसिबल केस है, आपको दिखेगा, तो एक फॉर्मूला नहीं है बेसिकली, लेकिन अब मतलब वो यू कैन गेस। अब यहाँ से एक चीज़ लिख सकते हो, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो आपको दिख जाएगा। सपोज एफ ऑफ पी 1 माइनस एफ ऑफ पी का वैल्यू क्या आएगा? यहाँ से पी आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो मतलब एफ ऑफ पी का वैल्यू आपको मिलेगा 1 माइनस पी, ठीक है।
एफ ऑफ पी का वैल्यू 1 माइनस पी आ गया। सपोज आपने यहाँ पे 1 माइनस पी रख दिया तो 1 1 कैंसिल हो गया, ऊपर बचेगा पी, नीचे बचेगा पी, पी पी कैंसिल हो गया, दैट मीन्स इसका रिजल्ट आ गया 1। कैन यू सी दिस इज ए लीनियर रिलेशनशिप, आउटपुट वर्सेस इनपुट। यस, दिस इज जस्ट अ लाइन। तो ये वाला जो होगा वही आपका एक्सेप्टेड फंक्शन डेफिनेशन होगा। ये जितने भी सारे हैं साइन एक्स, टेन एक्स, वो सब नहीं होगा, बिकॉज दीज आर नॉट लीनियर। ओके, दीज आर नॉट लीनियर। तो यहाँ से आप क्या करोगे, सिंपली इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके लिखो। क्या लिखेगा, 1 माइनस एफ ऑफ पी डिवाइडेड बाई पी इक्वल्स टू 1 होना चाहिए। तो पी को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ से आप क्या लिखोगे, दिस इज इक्वल्स टू पी। ठीक है, यहाँ से आपके पास आएगा एफ ऑफ पी इक्वल्स टू 1 माइनस पी। ठीक है, ये क्वेश्चन टफ कैटेगरी में मतलब वो कंसिडर करोगे, इजी नहीं था। ठीक है, सो द इनपुट इज पी, आप इनपुट को एक्स से रिप्लेस कर सकते हो, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 1 माइनस एक्स। सो दिस इज द गिवन बेसिकली रिक्वायर्ड फंक्शन है ये आपके पास, इट्स द रिक्वायर्ड फंक्शन। और देखो एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 1 माइनस एक्स इज सेटिस्फाइंग दिस कंडीशन ऑल्सो, कैन चेक। एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 1 माइनस एक्स इज सेटिस्फाइंग दिस गिवन रिलेशन ऑल्सो, आप चेक कर सकते हो। एफ ऑफ एक्स प्लस वाई बाई टू निकालो, क्या आएगा, ऑफ एक्स प्लस वाई बाई टू आएगा 1 माइनस एक्स प्लस वाई बाई टू। और वही चीज़ ये है, इसको क्या करोगे, करो 2 माइनस एक्स माइनस वाई आएगा, यहाँ से भी आप पता लगा सकते हो। ठीक है, वो आप खुद से कर लेना। एंड वेरीफाई ऑल्सो कि दिस गिवन रिलेशन, फिर दिस गिवन फंक्शन इज सेटिस्फाइंग दिस रिलेशन। ओके, एंड साथ में एफ ऑफ जीरो का वैल्यू भी 1 आ रहा है, देखो एफ ऑफ जीरो पुट करो 1 आ रहा है, एफ डैश ऑफ जीरो पुट करो -1 आएगा। ठीक है, सो द फाइनली द आंसर इज योर एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 1 माइनस एक्स। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। एंड यस, दिस इज a little bit tricky question, so please let me know in the comment section आपको आया कि नहीं समझ में। ठीक है, ओके, with this I am ending up this session. Thank you.